Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. I hope you all are doing good, you all are safe, you all are healthy, and your preparation for your upcoming exams are going wonderful. Now, today is 1st of August, and today the biggest question in your mind must be that whether you should opt out August 21 CS exams or not. If you are eligible to give exams from 10th of August and you are wondering that whether you should opt out or you should not opt out. Now in this video, in next 5 minutes, I will be analyzing this point that whether you should avail this opt out facility, which is now open with effect from 1st of August 2021 and will remain open till 20th of August. Now whether you should opt out August 21 exams or not, let us try to evaluate this question for executive and professional students. Now the biggest thing is opt-out option is available from 1st of August. It is open today and it will remain open till 20th August. You can go to the institute website. We can see that link is provided for opting out, and if you click this link you will get a request for opting out. This is a Google form which is available on institute website. You need to fill the details, your email ID and registration number, name of the students. An executive module or professional students can opt out partially also. For example, if you are eligible for 2 modules, your admit card is already out, you can definitely opt out for 1 module and give exam in December. Now you need to fill this simple form. Now the point here is partial opt out is permitted. Your admit card is out, no question about that exams will happen or not happen. Exams is going to happen, no doubt about this. Now the point here is partial opt-out is permitted. You need to take the decision very wisely. Now if you are in executive or professional students, you belong to two categories. If you can be in the old syllabus or you can be in the new syllabus. Old syllabus students का अभी ये last attempt था, लेकिन institute ने वो बढ़ा दिया है. Now old syllabus student अगर आप हैं तो definitely मैं कहूँगा you should always not skip this attempt, क्योंकि it is a golden opportunity. If your preparation is okay, you are satisfied with your preparation, your exam center is approachable, you should definitely not skip this attempt. Skipping attempt unnecessarily is of no use, I'm telling you, because exams will happen in December or January coming 2021 is a question mark, because third wave, everybody is alarming, will come near about any time. सो एग्ज़ाम्स अगस्त में हो रहे हैं, इसको हमें डेफिनेटली कैपिटलाइज करना है. एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में अगर आप हैं तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं. या तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, या तो आप रिपीट कर रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी गिवन द अटैम्प्ट earlier, or you have carry forward from June 20 or you have carry forward for December 20. ऐसे भी बच्चे हैं जो June 20 से December 20 में आए, December 20 में भी carry forward करके अब June 21 में आए, और June 21 के एग्जाम्स August 21 में हो रहे हैं. तो थिंक अबाउट इट कि कितना टाइम आपका वेस्ट हो चुका है. इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड डिसेंटली वेल, then definitely this is a time not to skip. तो old syllabus new syllabus दोनों के लिए ही मेरा ये मैसेज है कि स्किप करने का अननेसेसरली कोई फ़ायदा नहीं है. अब और डिटेल में अगर मैं बात करूं तो प्रिपेयरिंग, अगर आप ओल्ड और न्यू सिलेबस स्टूडेंट हैं तो 3 कैटेगरीज में मैंने स्टूडेंट्स देखे कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सबके लिए कवर करने की कोशिश करेंगे. और फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट मेरा है जो प्रिपेयर कर रहा है एक ही मॉड्यूल के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन का. डिसेंट प्रिपरेशन है, सेटिस्फाइड है, 80% प्रिपरेशन हो चुकी है, सब कुछ कवर कर लिया है, रिवीजन चल रही है, तो डेफिनेटली प्रिपरेशन ओके है आपकी तरफ से और आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम देने ही चाहिए, डेफिनेटली देने चाहिए. प्रोवाइडेड इफ़ यू आर नॉट इन सम एक्सेप्शन विल बी देयर. अगर आपका एक्सेप्शन थर्ड कैटेगरी वाला जो मैं क्या स्टूडेंट में अगर वो फॉल करता है, तो यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट है जो डेफिनेटली
प्रिपरेशन जिसकी अच्छी नहीं है तो उसको भी मैं कहता हूँ एग्ज़ाम देने चाहिए, बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ द एग्ज़ाम इन्वायरमेंट इज़, हाउ द एग्ज़ाम्स आर कमिंग, एंड डेफिनेटली यू शुड ट्राई कि एक एग्जामेशन ही आ जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो एग्ज़ाम डेफिनेटली आपको देने चाहिए। ओल्ड एंड न्यू सिलेबस स्टूडेंट, सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट मेरा है जो 2 मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर रहा है या ऑल मॉड्यूल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड डेफिनेटली उसके सारे मॉड्यूल्स जितने में वो प्रिपेयर कर रहा है उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं बहुत अच्छी प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली यू शुड गिव 100% टू योर वन मॉड्यूल, 100% जान लगा के एक मॉड्यूल के प्रिपरेशन के पेपर दीजिए, एंड डेफिनेटली यू कैन थिंक टू अवेल पार्शियल ऑप्ट आउट इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट मैनेज ऑल द पेपर्स नाइसली, क्योंकि परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो जाती है। अगर आपकी प्रिपरेशन 80% से ज़्यादा है तो डेफिनेटली दोनों ग्रुप के लिए जाइए, नहीं है तो डेफिनेटली जो बचा हुआ टाइम है उसको एक ही ग्रुप के सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने में लगाइए। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट प्रिपरेशन जिनकी नॉट एट ऑल गुड है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है, आपको पता है एग्जाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, पास तो होना नहीं है, तो आप डेफिनेटली ऑप्ट आउट अवेल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दिसंबर में जा सकते हैं। और ये क्यों नहीं है ये आपको पूछना है, बिकॉज दिस इज़ अ डेफिनेटली अ रीज़न ऑफ कंसर्न। अगर ये इस रीज़न की वजह से है कि आप कोविड पॉजिटिव थे या फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव था या आपको पढ़ने का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजंस, देन इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज़ अ मैक्रो फैक्टर। लेकिन अगर आपका ये फैक्टर है कि आपने पढ़ाई ही नहीं करी, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग यू हैव, ऑल द फैसिलिटीज़ यू हैव, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल सो ईजिली, यूट्यूब पे मैराथन अवेलेबल है, सब टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं करी, तो डेफिनेटली दोस्त आपके ऊपर सवाल उठता है और आपको डेफिनेटली ये टेक केयर करना है कि ये दोबारा रिपीट ना हो। बिकॉज हर बार ऐसी फील आएगी कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और हर बार ऐसी फील आती ही है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बिकॉज सिलेबस इज सो वास्ट। और दूसरे तरह का अगर आपका रीज़न है कि अगर आप ऐसी जगह लोकेटेड हैं जैसे कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है, ईदर ड्यू टू कोविड-19 केसेस और ड्यू टू फ्लड्स और एनी ऑफ द रीजंस, तो डेफिनेटली आप ऑप्ट आउट करने का सोच सकते हैं, ये सोचते हुए कि लाइफ से ज़्यादा एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली सबसे बड़ी सच तो यही है दोस्त कि एग्ज़ाम लाइफ से बड़ा नहीं है। आपका अगर सेंटर अप्रोचेबल है आप जा सकते हैं, प्रिपरेशन अच्छी है, देने का एग्ज़ाम देने का फ़ायदा आपको लग रहा है तो डेफिनेटली जाइए। नहीं लग रहा है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्की है, वैक्सीनेशन नहीं लिया है, रिस्क है डेफिनेटली एग्ज़ाम देने में, फ्लड्स हैं, कोविड-19 केस बढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली आप ऑप्ट आउट करके डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम के लिए एग्ज़ाम दीजिए और रिलैक्स कीजिए और अगली बार के लिए प्रिपरेशन कीजिए। एग्ज़ाम्स होंगे, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। येस, इफ़ सम सिचुएशंस, कुछ स्टेट्स में सिचुएशन ठीक नहीं होती तो मे बी इंस्टीट्यूट विल बी कैंसलिंग द एग्ज़ाम्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और वो दोबारा लेगा नहीं लेगा दैट इंस्टीट्यूट विल टेल, नहीं तो एग्ज़ाम कैंसिल ऑल ओवर इंडिया नहीं होंगे। और एक बड़ी न्यूज़, फ्रेंडशिप्स डे आज है और फ्रेंडशिप डे का एक छोटा सा गिफ्ट मैं सारे CS एग्जीक्यूटिव न्यूज़ सिलेबस स्टूडेंट्स को देने वाला हूं। अगर आप FM का पेपर दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप 2 का जो पेपर है, और आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं एक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट डालने वाला हूं आज शाम को, और यहाँ पे मेरे ऐप में उदित दुआ क्लासेस में जाके गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है सब स्टूडेंट्स के लिए, वेदर यू हैव स्टडीड फ्रॉम अस और नॉट, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिस टेस्ट टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और बैच में एंटर करने के लिए बैच कोड डालेंगे CS एग्जीक्यूटिव न्यू, और आज शाम से आप अपना ये प्रैक्टिस टेस्ट डेफिनेटली दे सकते हैं और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं और प्रैक्टिस टेस्ट डालूँ, जैसे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जो भी मैं सब्जेक्ट्स डील करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू गुड लक। अपनी प्रिपरेशंस अच्छी रखिए, पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से देने हैं, टेंशन नहीं लेनी है।
डेफिनेटली अपना जिस जो भी हार्ड वर्क किया है, इट इज़ अ टाइम टू कैपिटलाइज। एंड वन मोर थिंग, लाइफ को रिस्क में लेके कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे एरियाज में, केरला जैसे एरिया में डेफिनेटली अपनी लाइफ को स्टेक में दे के डेफिनेटली एग्ज़ाम देने मत जाइए। सेंटर दूर पड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर पहुंच सकते हैं डेफिनेटली दीजिए, नहीं पहुंच सकते इट्स ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम, ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी अदर कंसर्न रिगार्डिंग दिस ऑप्ट आउट स्कीम, definitely you can give a comment. God bless you. If you're new to my channel, do like, share and subscribe. God bless you. Stay connected, stay blessed. Goodbye. Jai Hind. Bye bye.